तो शुरू करें। आप लोग का माइंड में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, पहले अपने बारे में बताते तो फिर मैं शुरू करता, ठीक है? क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास में सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, ओरिएंटेशन क्लास में सबसे पहला बात होगा आपका क्या क्या करियर ऑप्शन है। सभी लोग यहाँ पर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होने वाले लोग हैं, ये सब ना, अभी फाइनल ईयर जिनका खत्म होने वाला, सभी लोग वही है ना? ओके, तो आप लोग का करियर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल। आप लोग के मन में कुछ डाउट होगा कि हमें क्या करना है, पीजी करना है, बीईडी करना है, तैयारी करना है गवर्नमेंट जॉब का, या फिर हमें कुछ ऐसा बिजनेस करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेरीज होगा, ये सब ना। पहले इस क्वेरीज को हैंडल कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आप लोग यदि अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताते तो मुझे पढ़ाना थोड़ा और आसान हो जाता। इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। स्टार्ट। ओके। ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऑनर्स हिस्ट्री आर्ट्स। ओके, सिट डाउन। You need to tell your name, college, your stream, honors paper, and your aim. That's it. Okay? Ma'am, you? I studied at Salipur Autonomous College, Salipur. Stream is science, honors chemistry honors. Now I am continuing PG in English. Okay. Now I am prepared for What is your aim? Ace. Yes. Okay. Good morning, sir. Good morning. Myself Dr. Pragya. I have recently completed my graduation from 12th Science College, and my honors is computer science. And Aim is? my aim is to be Judge. OJS. Okay. My name is Asma. Graduation complete in Government College. Okay. Stream commerce. And aim? Aim is very important. Do you have any aim or not? Not decided yet. Okay. Sit down. Ma'am. My name is Sasmita Sethi. I study in Vedanta University. Stream commerce. कॉमर्स। ओके। छुटकी आपके बारे में हम सब जानते हैं। My name is Sumantra. I studied in graduation in City College. Stream is commerce. Okay. Sit down. Aim? Not decided. You are too blank. Sit down. No issues. No issues. My name is Anita Das. I graduated from Mission City College. Okay. And I want to do something in banking. Banking sector. Okay. My name is Puravishri Naik. I have completed my graduation at Mission City College, stream commerce. My aim is to become an income tax. Income tax officer. Okay. Myself Sonalina, graduate from Sai Degree College, BSc Geology. BSc Zoology. And your aim? No aim. Aimless. Okay. I am Santosh Malhotra from SBM Autonomous College, Jagatpur, and I completed graduation in Civics Honors. Okay. My focus is on state government job. Okay. Myself Vishwit Bera. I studied Autonomous College, Patna. My aim is government job. Government job in any sector. Okay. 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 Government job. Okay. State government job. Okay. Pratish Naik, graduation from DKV College, Political Science Honors. Aim is government job. गवर्नमेंट जॉब। बोली बोली कोई भी। My name is Siddhartha Singh. I study in Bhagwan Degree College, stream commerce. My aim What is your aim? railway. Railway. Okay. My name is Jyotirendra Venkar. Bhagwan Degree College, +3 second year. +3 second year. Okay. What is your aim, sir? Stream Arts, Political Science Honors. Aim No aim. Railway. Very good. My name is Saurabh Sir. I have completed my BTech in Engineering Technology. Which college? Indus College of Engineering. Okay. My aim is any technical job. Any technical job. Okay. So my name is Saurabh Malhotra. I completed my graduation from JKV College in Sociology Honors.
सिविल सर्विसेज, ओके। सो आप लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बताया। आप लोग का एम जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। जल्दी कहा किसी भी असुविधा हो से ओडिया कही पार मैं ओडिया बुझुची कही भी पार्ची नो असुविधा, ओके क्लियर। तो आप लोग का बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन वाला एम है, किसी के कुछ है किसी के कुछ है। और आयरनी देखिए, एक ही टीचर है अभी क्लास में जो सारे एम को अभी कंट्रोल करेगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना फ़ोन को साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। तो देखो दोस्त, आप लोग का जो भी एम हो उसके लिए, एम के लिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एम लेकर आते हैं, लेकिन उसको हर हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है कि मेरा एम ये है। एम हम लोग बनाना बहुत आसान समझते हैं, एम बनाने में कुछ नहीं, कुछ भी हम लोग सोच लेते हैं। और बिल्कुल आप लोग का ये फंडामेंटल राइट है सोचने का, जो मर्जी हो सोच सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब देखते एम तो बना लिए लेकिन एफर्ट करने की बारी आता है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मक्कार बन जाते हैं, मक्कारी करने लगते हैं, है ना, खुद के साथ बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपका एम डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा, एम कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका। एम पूरा करने के लिए पता है एक जर्नी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको यहाँ से कटक से भुवनेश्वर जाना है तो जर्नी कंप्लीट करोगे तभी तो पहुँचोगे। ऐसा तो है नहीं कि टाइम मशीन में बैठे यहाँ से वहाँ पहुँच गए। आपको क्या करना है, बाय रोड हो, बाय एयर हो, बाय ट्रेन हो, आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नी करना पड़ेगा, तब जाके आप पहुँचेंगे। यस और नो। तो सेम चीज़ है, आज जो आप हो, आपका जो आज स्टेटस है, इस स्टेटस को यदि चेंज करना है तो आपको एक जर्नी करना ही पड़ेगा, चाहे 1 साल में करें या 5 साल में करें। जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो जर्नी को यदि हम रो रो के कंप्लीट करें क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा एंजॉय करें, कंप्लीट करें, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगा, मज़ा आएगा जर्नी में, है ना। तो हमारे साथ प्रॉब्लम बना रहता है कि हम जर्नी शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में खुद को हम लोग क्विट कर देते, ना भैया हमसे ना हो पाएगा। और आप देखोगे, एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, हम लोग पिछले 8 साल 9 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और जो बच्चे क्विट कर देते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब क्लास में आते हैं दोनों एक इक्वल होते हैं। इनफैक्ट जो क्विट करते हैं वो ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट भी होते हैं, कैलिवर भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी होते हैं जो क्विट करते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, वो लोग अपने आप को एक जगह पे स्टिक करके नहीं रख पाते, उनके पास पेशेंस का कमी होता है, इस वजह से वो लोग क्विट कर देते हैं। तो पहले दिन से ये माइंड से निकाल दीजिए, यदि आप इस चीज़ में, इस फील्ड में आए हैं तो इस फील्ड का किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि आपको पहले दिन या पहले रात में आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, ठीक। सक्सेस उसी को मिलेगा जो सक्सेस का हकदार होगा। कैसे, आपको यदि आपको लीडर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का कार्यकर्ता आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है कि आपका पप्पा का लीडर होना है, ठीक। वो जैसे धीरू भाई का, अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, उनका बेटा अनंत अंबानी, वो चलेगा सिस्टम, ठीक। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ करना है तो भैया एक ही चीज़ है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। हम लोग डर नहीं सकते। तो इस चीज़ को यदि आप लोग माइंड में रखते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आज शुरू करेंगे, हर साल बच्चे आते हैं, शुरू करते 2 महीने 3 महीने में क्विट कर देते हैं। उनके पास पेशेंस का इतना ज़्यादा अभाव होता है। पेशेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़े। तो देखो, करियर पाथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन, कुछ ट्रेंडिंग करियर है जो अभी इंडिया में चल रहा है। आज के टाइम में सबको स्टार्टअप करना होता है, एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है ना। एक करियर ये अवेलेबल है, कुछ भी कर लो, चाय का ठेला खोल लो, वो भी एक स्टार्टअप हो जाता है आज के टाइम में, इतना ट्रेंडिंग है ना। चलो, दूसरा चीज़ है, बच्चे बोलते हैं कि सर हम MBA MCA करेंगे, ये एक करियर आपके पास आता है। तीसरा चीज़ है कि सर हमको PG करना है, ठीक। फोर्थ है सर हमको BD करना है। सबसे
कुछ बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में सोच लेते, कुछ बच्चे जो होते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं हमको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल का तैयारी करना है, ये इधर आता है, सबसे लास्ट में आता है। लेकिन सबसे कम स्ट्रगल किसी का होता है तो इनका होता है। एक बार स्ट्रगल करना, एक बार सक्सेस लेना, 60 ईयर्स तक एंजॉय करना है। हाँ है ना, एक बार सक्सेस लेने में जितना आपको मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन अगले 60 ईयर्स तक आपका लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा। और इनमें से किसी का भी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होना अनलेस वो फिर से गवर्नमेंट में आए। ठीक, ये चीज तो है पहली बात। इसलिए कुछ लोग का जो ग्लैमर है इसमें है, रीजन यही है कि हमारा लाइफ जो रहता है सेट हो जाता है अप टिल रिटायरमेंट तक हमारा करियर सेट हो गया। क्लियर? अब यहां तक बात हो गया तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम लोग बनते हैं कि नहीं भैया हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, या किसी बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, किसी बिजनेस में पार्टनर बनना है, कुछ भी। ये क्या सिस्टम है? कुछ लोग होंगे कि नहीं हमको तो पापा का बिजनेस ही संभालना है, ऐसे भी लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करियर है, लेकिन इसमें भी इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप वो कहानी सुने हैं कि नहीं सुने मुझे पता नहीं। एक बार क्या हुआ था, ईशा अंबानी जो मुकेश अंबानी की बेटी है, वो अपना पढ़ाई फॉरेन में कर रही थी और अपने कॉलेज से उनको घर आना था। उनके दोस्तों के साथ उनका झगड़ा हुआ तो वो सीधा सीधी बोलते, जानते हो मेरे पापा कौन है? मुझे यहाँ से घर जाने के लिए चार्टर प्लेन भेजेंगे, मैं उससे घर जाऊंगी। ये क्या था उनके अंदर? घमंड, ईगो, अहंकार। ये बात किसी तरीके से मुकेश अंबानी सर को पता चल गया कि मेरी बेटी के अंदर में ऐसा बात है। उनको इकोनॉमी क्लास से वापस आना पड़ा, बोले इतना ही पैसा तेरे पास है, तुमको इसी में आना है। ठीक, तो पहला चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप वही होगा, ग्रोथ वही करेगा जिसके पास ईगो नहीं होगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छा ब्रेन है, मेरे पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। जिनके पास इन सब चीजों का ईगो नहीं होगा वही बढ़ेगा। मतलब कि एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसको एमडी लेवल से लेकर स्वीपर लेवल तक का काम आता हो। इनिशियल फेज में आपका बहुत बड़ा टीम नहीं बनेगा, आपको खुद से काम करना होता है। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। इसमें ग्लैमर क्या है? ग्लैमर यही है कि आप अपना खुद का बॉस हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपका डिसीजन जो रहेगा टॉप लेवल पे होगा, आप जो चाहेंगे वही होगा। क्लियर? आप जिस तरीके से, जिस रूल से, जिस रेगुलेशन से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस रेगुलेशन से आगे बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन आपका। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ लोग आते हैं, क्योंकि हमें किसी के अंडर में नहीं रहना, ये एक चॉइस होता है। क्लियर? कुछ बेनिफिट्स है इसका, ये आप देख सकते हो। यू विल बी योर बॉस, बता ही दिया। इंडिपेंडेंट प्रोफाइल है, किसी के ऊपर कुछ डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता है। मनी का रोटेशन ठीक ठाक होता है, आप दूसरे को जॉब दे सकते हो, ये सारा चीज इसमें बेनिफिट रहता है। क्लियर? लेकिन ये बेनिफिट्स है तो कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी होगा। कॉन्स ऐसा है कि इंडिया में हर साल जितना स्टार्टअप होता है उसमें से 2% ही ऐसा होता है जो आगे कंटिन्यू हो पाता है। क्लियर? क्योंकि हम लोग विदाउट एनी रिसर्च हम लोग शुरू कर देते हैं, मन में आया, दिल का सुन के, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना, मन और दिमाग और दिल में दिल का सुनो। वही लोग, दिल वाले लोग जो होते हैं वो लोग ऐसा गलती कर बैठते हैं 98% लोग, और धोखा हो जाता है उनके साथ। समझ में आई बात है? अब अपने पास दूसरा करियर है MBA MCA के लिए। कुछ लोग इसमें भी जाते हैं। सिर्फ MBA MCA क्या, जितना भी प्रोफेशनल कोर्स है, कोई बोले जर्नलिज्म में जाना है, जितने भी डिफरेंट टाइप का प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें जो जाते हैं, पहला चीज है, आप यदि एक ऑर्डिनरी कॉलेज और कोई भी इंक्लूडिंग किट ही क्यों ना हो, आप यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? पहला चीज एंट्रेंस क्लियर करना है। एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे कि नहीं? सेम वही पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना लगाते, काम बन गया अपना, है ना? अब एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे, 2 इयर्स का प्रोग्राम होगा, फिर प्लेसमेंट होगा, और प्लेसमेंट होगा तो ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट कंपनी में होगा तो प्राइवेट कंपनी में ही होगा।
और प्राइवेट कंपनी में सबसे अच्छा कंपनी एम्प्लॉयज के लिए कौन है? टाटा। उससे बड़ा कंपनी तो कोई नहीं होगा। टाटा में जो काम करते हैं उनको लगता है कि हम सरकारी कंपनी में ही काम कर रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन भैया टाटा का जो एमडी बने थे साइरस मिस्त्री, उनका भी करियर रातों रात खत्म हो गया था। जब रतन टाटा के बाद वो कंपनी का चार्ज लिए थे, अचानक से रातों रात उनका करियर खत्म। प्राइवेट का यही रूल है और दस्तूर है, क्या? आपका करियर का कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, योर ग्रोथ, योर बिहेवियर एंड योर डिवोशन टुवर्ड्स कंपनी। क्लियर? समझ में आई बातें? तो ये प्रोज और कॉन्स है यहाँ पर। तो आपको एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, डिफरेंट एग्जाम, जैसे कैट है, मैट है, जेट है, स्नैप है, इन सारे से आपको एडमिशन मिलेगा। और आपका होना चाहिए कि अच्छा कॉलेज में ही एडमिशन लेना, अदरवाइज नॉर्मल कॉलेज से करके इसको कोई फायदा नहीं होता है। क्लियर? तो बेनिफिट्स इसमें कुछ है, जैसे आपके पास करियर एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, डिफरेंट लोकेशन पे काम करो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। लेकिन इसके साथ कॉन्स क्या है? करियर का कोई लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब तक चले। बोला जाए तो इट इज लाइक चाइना। ये सो ना, आगे बढ़े। चाइना गुड्स की तरह होता है। चलो, अब लोग बोलते हैं कि सर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, ठीक। आफ्टर पीजी आपको क्या करना है वो भी पहले गोल क्लियर होना चाहिए। पीजी के बाद हमें क्या करना है? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के सामने देखो दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है दोस्त, चलो आज हम तैयारी करने जाते हैं, क्यों? अभी हमारे ऊपर इतना जल्दी बेरोजगारी का टैग ना लग जाए, चलो तैयारी करते हैं, पहला चीज। दूसरे तरह के बच्चे होते, बोलते चलो बेरोजगारी का टैग ना लगे, उसके साथ साथ कुछ डिग्री भी मिल जाए, चलो भैया पीजी करते हैं। तीसरा बच्चा होता है जो सीरियस होते हैं कि नहीं हम आए हैं तैयारी करने, यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं, ठीक। तो आप लोग को यही बेरोजगारी का टैग से कुछ दूर भागने वाले तो नहीं हो कुछ दिन के लिए? ऐसे वाले हो तो भैया 2-4 महीने के लिए बचोगे, फिर तो बेरोजगारी का टैग लगेगा। माइंडसेट चेंज करके आना पढ़ने के लिए, पूरा हेवी माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो पीजी में मिनिमम आपको 2 इयर्स लगना है, फिर आपको हायर स्टडीज करना पड़ेगा। हायर स्टडीज एमफिल करो, पीएचडी करो, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ठीक। नहीं तो फिर टीजीटी, पीजीटी ये सब एग्जाम दोगे, उसके लिए फिर से बीईडी करना पड़ेगा। यस और नो? तो एक और करियर अपने पास रहता है कि चलो भैया बीईडी करें, ये अपने पास एक करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो बीईडी आपको करना है तो आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में ज़्यादा सीट अवेलेबल नहीं है, आगे बताऊंगा आपको, बहुत लिमिटेड सीट अवेलेबल है, ठीक। उड़ीसा का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी SAMC है, जहां से आपको एग्जाम देना है, ठीक। तो कुछ ऐसा है। अब देखो इस साल जो उसका है कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा, ये आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। एप्लीकेशन जो आना मई टू जून में आना है, एक्सपेक्टेड है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं कि कब आएगा। क्लियर? अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, आपको बैचलर डिग्री में या इंजीनियरिंग में 50% या 55% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। क्लियर? ये इसका क्राइटेरिया है। एज लिमिट है जनरल के लिए 28 साल, SC, ST, SC, BC के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 30 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 38 ईयर्स, ये इसका क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फी जनरल OBC के लिए 500 है, SC, ST, PW के लिए 300 रुपये, ठीक। एग्जाम डेट जो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है 3rd to 4th वीक ऑफ जून में होना है, ठीक है। SAMS का वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये रही सारी बातें, ठीक। लेकिन आपको इस करियर में चौंकाने वाला बात क्या है कि उड़ीसा में मात्र 2400 सीट अवेलेबल है, ओनली 2400 सीट बीईडी करने के लिए अक्रॉस डिफरेंट कॉलेज। और देखो यहाँ पर टोटल 29 इंस्टीट्यूशन है उड़ीसा में जो बीईडी का तैयारी करवाता है, बीईडी का डिग्री देता है, और उसमें टोटल सीट कितना है? 2400। लेकिन हर साल उड़ीसा से बीईडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और बीईडी के फील्ड में जाते हैं लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे बीईडी करते हैं। कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं? नागार्जुना यूनिवर्सिटी, ठीक। देखिए उस बीईडी में होता क्या है, आपको टोटल चीज बता दे रहा हूँ, बाकी चॉइसेज योर्स, जो आपका मर्जी हो करो।
हम लोग डायरेक्टली नागार्जुन यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन नहीं लेते, पहले हम उसका वेंडर को ढूंढते अपने आसपास जो नागार्जुन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला पाए। पहला काम वेंडर को ढूंढ लिए, फिर हम लोग गए, चलो भैया मेरा एडमिशन करा दो। वेंडर जाएगा वहाँ एडमिशन कराएगा तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये कमीशन उठाएगा, फिर आपका एडमिशन होगा जाके, ठीक। और आपको एग्जाम देने के लिए जब भी जाओगे तो आपसे अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न में लेगा वो, ठीक। चलो एग्जाम देना है, अभी प्रोजेक्ट है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, 2 साल खाली पैसा में जाएगा, ठीक। एट दी एंड आपको रो रो के डिग्री तो मिल जाएगा, ठीक। डिग्री लेकर फिर आपको क्या करना है, उड़ीसा गवर्नमेंट में अप्लाई करना है जॉब, यस सर नो। टीचरशिप के लिए अप्लाई करोगे, टीचर का वैकेंसी कितना आता है उड़ीसा में, ये भी देखने वाला चीज, हाँ है ना। इससे बेटर है भैया जब आपको बीडी करना ही है तो उड़ीसा में रह के करो, उड़ीसा के कॉलेजेस से करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। और एंट्रेंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि आप जो तैयारी करेंगे उस एंट्रेंस से कवर हो सकता है, कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो आपका यहाँ पर बीडी भी कंप्लीट हो गया, तैयारी भी कंप्लीट हो गया, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी लेवल में जॉब में जाओ या फिर टीचर बन जाओ, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको। तो करना तो हम यहाँ से क्यों ना करें, आज करें 1 साल के बाद करेंगे तो यहीं से करेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। यदि इस चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, 2 साल आपका उधर उस चक्कर में दौड़ाते रहेगा आपको और वहाँ पर परेशान रहेंगे, क्लियर। ये बात अपने सामने आया। तो अब देखो दोस्त, हम लोग तो सोच लेते हैं नहीं सर हमको तो बीडी करना ही है, कीजिए ना, किसी ने रोका नहीं आपको बीडी करने के लिए। बीडी करना है तो पहला टारगेट हमको कहाँ से करना है, उड़ीसा से करना है। रीजन क्यों, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, खर्च कम आएगा, दूसरा चीज उस टाइम को हम दूसरे जगह पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स तो डिग्री वाला कोर्स और कुछ नहीं कर सकते, तैयारी कर लेंगे, आगे आपको काम ही आना है। आप जब टीचरशिप का एग्जाम देखो वहाँ भी काम आएगा, बीडी का एंट्रेंस में काम आएगा और आपका गवर्नमेंट जॉब में तो काम आएगा ही आएगा, क्लियर। तो हर एक बात क्लियर हो गया यहाँ तक, ना कोई डाउट, बोलो दोस्त। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब का बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में आपके पास 2 सेक्टर है, एक बोलते हैं ग्रुप ए, सम पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, सम पोस्ट नॉट ऑल पोस्ट इसके लिए, और दूसरा है ग्रुप बी सी डी इसके लिए, ठीक। 2 चीज के लिए प्रिपरेशन होता है। अब इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे जो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होता है उस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं यूपीएससी। इसमें आपको जो होगा ऑल इंडिया लेवल पर आप तैयारी करेंगे, क्लियर। और इसके लिए जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पर उसको बोलते हैं एसएससी रेलवे एंड अदर पीएसयूज एग्जाम। अदर पीएसयूज एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम आ गया, जैसे एलआईसी का एग्जाम हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम हो गया, पोस्टल का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, जितना भी एग्जाम हो गया अदर पीएसयूज में आ गया, क्लियर। दोनों चीज आपके पास है, क्लियर। ऑल इंडिया लेवल पे बात करें। अब बात करना है कि नहीं सर हमको तो स्टेट लेवल में तैयारी करना है, तो ग्रुप ए के लिए आपको तैयारी जो करना है वो तैयारी आपको देगा ओपीएससी, पॉपुलरली इसको हम लोग बोलते हैं ओएस एग्जाम, ठीक है, इधर से आपको मिलेगा। और इधर यदि प्रिपरेशन करना आपको तो उसके लिए ओएसएससी, ओ ट्रिपल एससी, उसके बाद आपका एग्जाम्स रहेगा ओएसएससी, ओ ट्रिपल एससी एंड आफ्टर दैट आपका एग्जाम हो जाएगा जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम हो जाएगा, डिफरेंट एग्जाम्स आ जाएगा, ठीक।
तो ये सारा एग्जाम्स आपको मिलेगा। क्लियर? हम इधर से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोनों का बात करें, सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, सिलेबस में डिफरेंस क्या जानते हैं? एक में आपको स्टेट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा जीके पढ़ना है, एक में ऑल इंडिया का जीके पढ़ना है। एक में ओडिया लैंग्वेज जानना जरूरी है, एक में ओडिया लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है। दैट्स इट। बाकी सिलेबस सेम है। मेजर बात करें सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? जिसको जो लगे, जहाँ पर लगे, लिखने का मर्जी हो लिख लेना, किसी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्लियर? आगे बढ़े? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। तो अभी आपके साथ मैं यहाँ पर बात करूँगा ग्रुप बी, सी, डी लेवल का। ग्रुप ए लेवल के लिए आपको इवनिंग टाइम में आना पड़ेगा। आपको तो ये बैच के लिए बोला नहीं गया होगा, इवनिंग में बोला गया ना? दोस्त देखिए, सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने बोला कि अपने पास एग्जाम कौन कौन सा है? एसएससी। एसएससी में डिफरेंट एग्जाम्स है। जैसे क्या क्या एग्जाम? सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, उसके बाद आपका हो गया फेज एग्जाम्स, एमटीएस, जीडी। इतना सारा एग्जाम कंडक्ट करता है एसएससी। और एक एग्जाम तो मैं छोड़ ही दिया टेक्निकल लोगों के लिए, एक और एग्जाम है जिसको बोलते हैं जेई। ठीक, इतना सारा एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? एसएससी। क्लियर? सोच लो, हर साल इतना एग्जाम होना है। क्लियर? अब बात करें रेलवे के लिए, आपको सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, स्टेनोग्राफर, फेज एग्जाम, फेज 11, फेज 7, 8, 9, इस तरह से अलग अलग जो पोस्ट वैकेंट रह जाता है इन सब एग्जाम में, उसको फेज में निकाल देता है। क्लियर? मल्टीटास्किंग स्टाफ, जनरल ड्यूटीज, ये सब एग्जाम आपको मिलेगा। क्लियर? रेलवे में बात करें तो आपको एनटीपीसी का एग्जाम मिलेगा, एएलपी का एग्जाम मिलेगा, टेक्नीशियन का एग्जाम मिलेगा, जेई का एग्जाम मिलेगा। ये सब एग्जाम आपको मिलना है। क्लियर? किस में? रेलवे में। बैंकिंग में बात करें पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर और सिंगल विंडो ऑपरेटर, जिसको क्लर्क बोलते हैं, ये एग्जाम मिलेगा आपको। क्लियर? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हो गया। अब इसके साथ साथ अब यदि आप एलआईसी जाएंगे या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जितना एग्जाम जाएंगे, वहां पर आपको जो मिलेगा, आपको मिलेगा डबल एओ का पोस्ट, ठीक, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या एओ का पोस्ट मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा, अलग अलग पोस्ट मिलेगा। आरबीआई का एग्जाम आप दे सकते हैं, ग्रेड बी का एग्जाम मिलेगा आपको। क्लियर? आप उसके बाद डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट का कभी वैकेंसी निकल गया, कभी अदर स्टेट का आ गया, कभी पुलिस का वैकेंसी आ गया, अलग अलग स्टेट का हर चीज आते रहता है। क्लियर? अब बात करेंगे, नहीं सर हमको तो जाना है हमको तो जाना है सर, हमको अलग तैयारी करना है, हमको उड़ीसा गवर्नमेंट का ही तैयारी करना है, तो यहाँ पर आपको ओएसएससी का एग्जाम देने को मिलेगा, OSSC का एग्जाम देने को मिलेगा, जिसमें सीजीएल आपका सीजीएल के थ्रू होगा एग्जाम,
RI का होगा, ARI का होगा, अमीन का होगा, टोटल एग्जाम यहाँ पर आपका कवर होगा। ठीक, ग्रुप बी लेवल में OPSC भी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको बोलते हैं ASO, हाई कोर्ट का एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं ASO एग्जाम। ठीक, तो अलग अलग एग्जाम आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये सब तो एग्जाम का बात हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस, मेजर सिलेबस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज इसको डिफाइन कर देंगे कौन सा सिलेबस कहाँ पर है। क्लियर? मेजर सिलेबस जो अपने पास रहेगा दोस्त, सबसे पहला चीज रहेगा आपके पास क्वांट्स, जिसको एप्टीट्यूड भी बोलते हो या मैथ्स भी बोलते हो, जो बोलना है बोलो। ठीक, इसका दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? एरिथमेटिक होता है और एडवांस होता है। एरिथमेटिक क्या है, एडवांस क्या है? एरिथमेटिक में परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सबका सब टॉपिक आएगा। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, जितना टॉपिक हो गया सब आएगा उधर। ठीक, एडवांस में क्या हो गया? एडवांस आपका जैसे हो गया अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, LCM HCF, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब टॉपिक इधर आएगा। ठीक, इसके साथ एक टॉपिक आपका रहता है जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा, तो वो जो बनेगा अरिथमेटिक के साथ आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर? ये रहा मैथ्स। दूसरा टॉपिक होता है रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग में आपके पास वर्बल रीजनिंग भी रहेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेगा। वर्बल रीजनिंग क्या है दोस्त? वर्बल रीजनिंग वैसे रीजनिंग को बोलते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग हो। रीजनिंग मतलब क्या? मेंटल एबिलिटी, अपना दिमाग खर्च करके आंसर बताओ। ठीक, लेकिन जो लैंग्वेज रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे वर्बल। जो लैंग्वेज रिलेटेड नहीं होगा, पिक्चर रिलेटेड होगा या कोई आपका कॉमन सेंस रिलेटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल। क्लियर? तीसरा रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपका ग्रामर हो गया, उसके साथ साथ आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड का हो गया खेल, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका मिस स्पेल्ड एरर, तो वो सारा चीज आपका इंग्लिश में कवर होगा। क्लियर? ये जो टॉपिक है आपका हर एग्जाम में कॉमन है। इसके साथ यहां तक हो गया, सभी का लिख चुके हो? चलो, एक टॉपिक और है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज। ठीक, ये कोई भी एग्जाम का जान होता है। इतना जो ऊपर 1 2 3 पेपर लिखा सारे बच्चे का स्ट्रांग होता है, इस पे जो कमांड कर लेता है वो एग्जाम निकाल लेता है। जिसका ये छूट गया, आप अक्सर अपने सीनियर से पूछना, जो एग्जाम क्लियर किया उनसे भी पूछना, जो नहीं किया उनसे भी पूछना। कष्ट देने वाला चीज और मजा आने वाला चीज दोनों है जनरल स्टडीज। बच्चे को मैथ्स करने में बहुत मजा आता है, रीजनिंग करने में बहुत मजा आता है, इंग्लिश तो रटने वाला चीजें रट लेते हैं बच्चे। ठीक, तीनों चीज। लेकिन एग्जाम में सबसे बड़ा बेवफा सनम कोई है तो वो मैथ्स है। 100% धोखा देगा ही देगा, जितना पढ़ना है पढ़ लो। ठीक, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट बेवफा सनम। उससे बड़ा बेवफा सनम कुछ है ही नहीं। क्लियर? धोखा देना है तो देगा। ठीक, रीजनिंग लिमिटेड सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस जो भी है लिमिटेड है, उतना कंप्लीट कर ले तो भैया आप कंप्लीट बनाओगे क्वेश्चन जहां से है। सेम स्टेटस है जीएस का। जीएस का 2 पोर्शन होता है, एक को बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन, दूसरे को बोलते हैं करंट पोर्शन। ठीक,
स्टैटिक पोर्शन में जो जो टॉपिक है वो आपका है इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, तीसरा रहेगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, यहां पर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर आपका थोड़ा कुछ पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आ सकता है। एनवायरमेंट, सिक्स्थ में रहेगा जनरल साइंस, इसमें जो रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। ये आपका होना है सिलेबस, क्लियर। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वो आ जाएगा करंट में, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद एक टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर। इतना आपका सिलेबस रहेगा एग्जाम का, जनरल एग्जाम का सिलेबस इतना होना है। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगा, उस एग्जाम का रिक्वायरमेंट को हम लोग समझेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे तो इंडिया में जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो भैया, आप एक कोचिंग में बैठे हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कोचिंग वाले यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए? एसएससी का तैयारी अलग कर लो, रेलवे का अलग करो, उड़ीसा गवर्नमेंट का अलग करो, बैंकिंग का अलग करो, लेकिन सिलेबस इतना में ही घूमेगा। तो अलग अलग तैयारी हम क्यों करें? कोचिंग वाले को अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फी मिलेगा। दिस इज रियलिटी, ठीक। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि हमें सेम टीचर ही पढ़ाएंगे, हो सकता है टीचर चेंज हो जाए, नहीं बैंकिंग वाले टीचर अलग हैं, एसएससी वाले टीचर अलग, क्योंकि पैसा तो लेना है आपसे, वहाँ पे अलग फेस तो दिखाना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया जब हमारे पास सिलेबस सेम है तो क्यों ना हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अलग अलग लेवल का। एग्जाम में डिफरेंस वही है जैसे कि आपका जो रहता है ना, सीबीएसई वाला 10th का जो एग्जाम देगा, स्टेट बोर्ड वाला जो देगा, आईसीएसई बोर्ड वाला जो देगा, सबको 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा, सबका सर्टिफिकेट इक्वली वैलिड होगा, लेकिन एग्जाम का पैटर्न सबका अलग अलग है, हाँ या ना। वही डिफरेंस है एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, और आगे चलकर ये डिफरेंस ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सीईटी एग्जाम आना है, आपको सीईटी बेस्ड एग्जाम देना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए कॉमन एग्जाम देना है, क्लियर। तो हम क्यों एक ही बार में तैयारी ना करें, अलग अलग तैयारी क्यों करें, क्लियर, समझ में आई बातें। तो ये तो रहा आपका प्रिपरेशन का सिलेबस। इतना तैयारी कर लेंगे तो इंडिया में जितना एग्जाम है आप सारा एग्जाम दे पाएंगे। तो बोलेंगे सर ऐसा कैसे? देखो अभी यदि ये सिलेबस जो बताया ये कंप्लीट आपका एसएससी का जितना एग्जाम बताया था सारे एग्जाम का सिलेबस है, ठीक। अदर देन जेई, जेई में आपका टेक्निकल पेपर आएगा प्लस इतना नॉन टेक रहेगा, ठीक, समझ में आई बातें। अब बात करें रेलवे का। रेलवे का स्पेसिफिक सिलेबस क्या हो जाता है? रेलवे का सिलेबस जो होता है दोस्त, एसएससी का सिलेबस माइनस इंग्लिश होता है। एसएससी का सिलेबस माइनस इंग्लिश, मतलब जो एसएससी का सिलेबस है सेम रहेगा लेकिन इंग्लिश नहीं रहेगा। तो बोलेंगे क्या सर सेम क्वेश्चन आता? नहीं, एसएससी का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन एसएससी के कंपैरिजन में रेलवे का जो रहता है थोड़ा इजी रहता है, लेकिन जीएस जो रहेगा एसएससी के कंपैरिजन में थोड़ा भास्ट रहेगा रेलवे में, ठीक। और एसएससी का एग्जाम में क्या रहता है, किस पे गेम खेलता है वो? हार्ड क्वेश्चन किसका बनाएगा? मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। जीएस कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रखता है,
क्लियर। लेकिन रेलवे उसका उल्टा है क्योंकि इंग्लिश वहां पर नहीं है। समझ में आया। अब बात करें दोस्त बैंकिंग का। बैंकिंग का सिलेबस जो रहेगा क्वांट में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक रहेगा प्लस डीआई रहेगा, ठीक। लेकिन इसके साथ एक टॉपिक दे दिया दोस्त, उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। इट इज टॉपिक ऑफ एडवांस। गेम देखो कैसे खेलता है, ठीक। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ वर्बल रहेगा, लेकिन इसके साथ एक टॉपिक दे दिया जिसको बोलते हैं पजल। इसके साथ एक टॉपिक दे दिया जिसको बोलते हैं मशीन इनपुट। क्लियर। इंग्लिश का सिलेबस जो रहेगा सेम टू सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। यहां पर जीएस नहीं होगा, जीएस होगा ही नहीं, तो क्या होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा इसकी जगह पर। बैंकिंग अवेयरनेस होगा। बैंकिंग अवेयरनेस क्या है पता है, सबसेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का चीज यहां भी पढ़ना है आपको, उसका छोटा सा पार्ट यहां पर पढ़ना है, ठीक। तो देख लो इसका जो सिलेबस है एसएससी का सबसेट है, तो बोलेंगे सर तो हम इसका तैयारी क्यों करें, डायरेक्ट इसका करें। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भैया बैंकिंग का क्वेश्चन जो आता है ना स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। एसएससी के कंपैरिजन में मैथ्स हो या फिर आपका रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो या फिर एक चीज और बची है यहां पर, कंप्यूटर, स्टैंडर्ड हाई होता है इसका। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई, सीट कम, इस वजह से यहां कंपटीशन ज्यादा है। 2015-16 में आता था 25,000 30,000 वैकेंसी आता था, अब आता है 500 600 7,000 8,000 इस लेवल का वैकेंसी आता है। इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है और कोई बात नहीं, बाकी सब एक ही है। क्लियर। समझ में आई बातें। तो ये सब तो हो गया सेंट्रल लेवल का एग्जाम का बात। अब बोलेंगे सर हमको तो इस सब चीज से मतलब नहीं, हमको तो उड़ीसा में ही रहना है, उड़ीसा का एग्जाम बताइए। ऐसा रिजिलियंट मत हो जाना दोस्त, आपको हर जगह का एग्जाम देना है। पहला चीज है अपने आप को सिक्योर करना। एक एग्जाम निकाल के कहीं पे ही सेटल हो जाए, फिर दूसरा एग्जाम निकाल के आपको जो मर्जी का पोस्ट है वो लीजिए, लेकिन पहले सेटल हो जाइए। समझ में आई बात है। चलो अब जो बात करें सर उड़ीसा गवर्नमेंट का सिलेबस क्या है सर, मुझे बताइएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट का सिलेबस जो बोलता है ना, ये सिंपल सा बोलता है भैया जो एसएससी का सिलेबस है वही रहेगा, इसके साथ आपको कुछ चीज जानना है एक्स्ट्रा। क्या जानना है सर, तो आपको जानना है ओडिया, उड़ीसा हिस्ट्री और उड़ीसा ज्योग्राफी। इतना सा एक्स्ट्रा जानिए, उड़ीसा गवर्नमेंट हो गया। तो मुझे बताइए एसएससी के लिए अलग हम क्यों पढ़े, रेलवे के लिए अलग क्यों पढ़े, बैंकिंग के लिए अलग क्यों पढ़े, उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए अलग क्यों पढ़े, बताइए। कुछ ऐसा बात है तो मुझे बता दीजिए, ओपन है सबके सामने। कुछ आपको दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए। हाँ क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। उड़ीसा गवर्नमेंट तो अपना क्वेश्चन बनाता नहीं है, क्वेश्चन में दिमाग खर्च नहीं करता, वो कॉपी पेस्ट करके दे देता है। तो आप इधर तैयारी कर लेंगे तो आपका काम बन गया, वो खुद का क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। पता नहीं वहां पर जो एग्जामिनर का पोस्ट निकालता है क्यों निकालता है, वहां पर वो लोग काम क्या करते हैं, खाली कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V रख दिया, हो गया ये स्टेटस। क्लियर। तो हम इतना दिमाग खर्च क्यों करें। समझ में आई बात, हो गया बात खत्म। चलो तो भैया अब ये सिलेबस का हमको तैयारी करना है ना। तो ये सिलेबस को तैयारी करने के लिए आपको ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक वाले नहीं सर हमको तो इसी एग्जाम का तैयारी करना है। यदि इंटायर सिलेबस जितना बताया हूं, ये कंप्लीट इंटायर सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, बेईमानी किए बिना ईमानदारी से, तो आपको लगभग 10 से 11 महीना लगेगा कंप्लीट होने में। विदाउट एनी बेईमानी, ईमानदारी से पढ़िएगा, इतना टाइम लगना ही है।
अब यदि कोई इसको आपको बोले कि भैया हम 4 महीने में पढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या है? अंदर का सिलेबस में घपला हो रहा है। कोई बोले 6 महीने में पढ़ा देंगे, थोड़ा सा कम घपला कर रहा है, लेकिन घपला वो भी कर रहा है। इससे कम में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे आप अर्थ का आदमी से पढ़ लो या मार्क्स का आदमी से पढ़ लो, सिलेबस जो है उतना टाइम लगेगा, उससे कम में नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। अब देखो यहाँ पर कोचिंग वाले गेम क्या करते हैं, कोचिंग के पास 2 ऑप्शन होता है। बोलेगा कि भैया हम इतने महीने में पढ़ाएंगे, एकदम हेफ्टी फी अमाउंट बताएंगे, जो भी अमाउंट बताए हेफ्टी फी अमाउंट देंगे आपके सामने, ठीक। एक दूसरा कोचिंग होंगे वहां पर जो बोलेंगे भैया हम फी आपसे कम लेंगे, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट फी लेंगे, 5-10 हज़ार टाइप फी लेंगे, ठीक। लेकिन वो क्या करेंगे, 4-5 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और जो हेफ्टी अमाउंट लिए वो 10 से 11 महीने आपको पढ़ाएंगे, ये बात सच है। वहां पर क्या होगा, इनिशियल कुछ दिन के लिए आपको जो टीचर मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, उसके बाद रेस्ट के लिए टीचर अलग मिलेंगे, अलग टीचर रहेंगे। ये लोग टीचर को हटा के पैसा बचाते हैं, ये लोग कोर्स को कम करके पैसा बचाते हैं, ठीक। 2 सिनेरियो होता है। वहां पर कुछ ऐसे होते हैं, वो भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर होते हैं जहां के टीचर जो होते हैं उस कोचिंग में स्टेक होल्डर हो। वही कोचिंग ऐसा होता है जहां पर आपको ईमानदारी से सही तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आई एम द स्टेक होल्डर ऑफ दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। मुझे ना किसी को पैसा देना है ना किसी से लेना है। बात समझ रहे हो? ये डिफरेंस आता है, क्योंकि देखो वो जो रहेगा उनके सामने लिमिटेड है कि भैया हमको 2 घंटे में ये चीज खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मेरा बच्चा यदि 5 मिनट में नहीं समझा तो हम उसको 10 मिनट दे पाए। मेरे पास वो टाइम का लिमिट नहीं है। लेकिन जो टीचर यहाँ पर पेमेंट लेकर खड़ा होकर पढ़ा रहे होंगे, चाहे कहीं भी पढ़ाएं, टीचर की कोई गलती नहीं है। कोचिंग के सामने ये प्रेशर होता है कि भैया हमको इस टाइम में ये खत्म करना है, ये रहता है बात, ठीक है। अल्टीमेटली आप कोर्स फी भी दिए, टाइम भी अपना दिए, उसके बाद सफर भी आप कर रहे हैं, तो आपको डिसीजन लेना बहुत अच्छे से, मैं जितना भी करियर ऑप्शन बताया कि आपको कौन से करियर में जाना है, क्या करना है, और करना है तो कहाँ से करना है, ठीक। तो उसके लिए अगला स्लाइड अपना है ये, ठीक है। स्टेप टू चूज राइट कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। कौन सा कोर्स खुद के लिए चुने, ठीक है। आपका करियर पाथ को पहले डिफाइन कर लो कि हमको कौन से रास्ते में जाना है, उसके हिसाब से चुनेंगे। दूसरा चीज होना चाहिए, उस करियर के बारे में रिसर्च करो, क्या कोर्स उसके लिए अवेलेबल है, रिसर्च कर लिए। उसके बाद अपना क्रीडेंशियल को देखिए, ऑथेंटिक चीज़ों को देखिए कि कहाँ से करना, ऑथेंटिसिटी उसका चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी से कर लेना। उसके बाद आपके पास ऑल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज को कंसिडर कीजिए, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, दूसरे एग्जाम के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा नहीं होगा तीसरे के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जो मैं आपको बताया ना ये सिलेबस, कि भैया यहाँ पर जितना एग्जाम है इंडिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। यदि हम एक स्पेसिफिक एग्जाम का तैयारी करके बैठते सिर्फ और सिर्फ, नहीं भैया हम सिर्फ बैंकिंग का तैयारी करेंगे, आप एडवांस तो पढ़े नहीं हो, जीएस तो पढ़े नहीं हो, नहीं भैया हम सिर्फ रेलवे का तैयारी करेंगे, इंग्लिश तो पढ़े नहीं हो। बात समझ रहे हो? तो हमको जो तैयारी करना है स्पेसिफिक नहीं होना है, ओवरऑल प्रिपरेशन करना, और उसमें फिर स्पेसिफिक एग्जाम को देना है। इससे क्या होगा, हमारा सक्सेस का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ना कोई डाउट? समझ में आ रहा है बात? ओके। तो अब यहां पर जो बात आया, इसके बाद आपका करियर में जितना एग्जाम बताया, इस एग्जाम का यदि आप तैयारी करेंगे, आगे चल के आपको बीईडी का एग्जाम देने का मन करे, दे दो, पक्का है आपका 1 to 10 के बीच में रैंक आएगा, आउट ऑफ 2400 सीट गारंटेड। आपने कोचिंग से कई सारे बच्चों का आ चुका है, 100% आएगा। जिनको बीईडी देने का मन ही कर रहा है कि नहीं हम तो बैठे क्यों नहीं, देंगे एग्जाम, दीजिए, आपका 100% आना है वो चीज, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। दूसरा चीज, नहीं सर हमको एमबीए करना है, उसमें भी सिलेबस सेम है दोस्त, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सेम है, 100% काम आना है। अब मैं आपको बता देता हूं
मैं जो यहाँ क्वांट्स पढ़ाऊंगा सिर्फ वही क्वांट्स को मैं यहाँ पर जो ऐसे बैच का नाम क्या दिया, एसएससी बैंकिंग रेलवे उड़ीसा गवर्नमेंट, इसके लिए इसी बैच के नाम के आगे सिर्फ लिख दूंगा कैट, सिलेबस रहेगा सेम, पढ़ाऊंगा सेम, आपका कोर्स फी का ट्रिपल कोर्स फी हो जाएगा। समझ पा रहे बात है? ये सारी चीजें यहाँ पर रहता है थोड़ा सा चेंजेज। अब देखो दोस्त, तो यहाँ पर हमारा कोचिंग आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकता है। आपके सामने जो कोचिंग में आप अभी जो बैठे हैं, आप यदि देखेंगे पूरा उड़ीसा में यदि कोई कोचिंग होगा तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड कोई कोचिंग हो तो आप जिस कोचिंग में बैठे हैं वही है एआर क्रिएशन सेंटर। गूगल पे जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी लगभग कल तक का ये डाटा है 1.2,000 प्लस आपका रिव्यूज में 4.9 स्टार होता है इनका। ठीक, तो कहीं ना कहीं यू कैन ट्रस्ट ऑन इट, और ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ ये रिव्यू नहीं है, रिव्यू के साथ आप देख सकते हो ये इस साल का रिजल्ट है 2023 का आपके सामने है। हर सेक्टर में बच्चे गए हैं, हर एक सेक्टर में। ठीक, तो कुछ रिजल्ट यहाँ पर लगा हुआ जिसमें से हर सेक्टर में बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम उड़ीसा गवर्नमेंट से लेकर आपका एटॉमिक एनर्जी तक हर डिपार्टमेंट में बच्चे गए। टेक्निकल हो, जेई से लेकर आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हर जगह पर बच्चे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में गए हैं। ये आपका रिजल्ट इस साल का, रिजल्ट के बेसिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। रिव्यू आपको एक रिजल्ट पे ट्रस्ट करने के लिए आपको एक दूसरा पैरामीटर दे रहा हूँ, क्लियर। और देखना है ये उसके पिछले साल का रिजल्ट है जो आपके सामने 2022 का है, क्लियर। यहीं से बच्चे पढ़ के यहीं से कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर सेटल हुए। कोई टीचर भी बने, कोई हाई कोर्ट में भी गए, कोई रेलवे में भी गए हैं, तो कोई आपका उड़ीसा पुलिस में भी गए हैं, कोई रेल स्टेशन मास्टर भी बने, अलग अलग जगह पर सब गए हैं, क्लियर। समझ पा रहे बात? कोई डाउट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ये आपको बताएगा कि भैया जब इन बच्चे लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन बच्चों की तरह करना है तो एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, और आपसे भी होगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार नहीं मानना है, हार मानने का नहीं है। समझ में आई बात है? एक इंसान जो रहता है चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा रूलर बना देता है। एक इंसान जो रहते हैं पूरा एकदम छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ को तोड़ देते हैं और मांझी दी ग्रेट बन जाते हैं। एक इंसान धोती पहनते हुए पूरा देश को आज़ाद कर देते हैं और महात्मा गांधी बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको जो जरूरत है, एक ही चीज का जरूरत है, खुद पे सेल्फ बिलीफ, यस आई कैन। उसके लिए आपको क्या करना है? नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है। नेगेटिव लोग का काम क्या रहेगा? आपको, वो तो खुद नेगेटिव है, उनसे कुछ होना नहीं है। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करें। इसलिए जो नेगेटिव लोग हो उनको अवॉइड करना शुरू कीजिए। ठीक, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज इम्पॉसिबल। सब कुछ संभव है, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, समझ में आई बात? और आज के डेट में हमें ये करने की जरूरत क्यों है? आप में से जितने लोग भी यहाँ पर आज क्लास कर रहे हैं, मुझे बता दो कोई ऐसे हैं जो मिलीनियर के बच्चे हैं? कोई बैठे हैं क्या जो बोल सकते हैं कि नहीं सर हम तो मिलीनियरों के बच्चे हैं, हम तैयारी नहीं करेंगे? कोई है ऐसे? नहीं। गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन वही करता है, गवर्नमेंट जॉब में वही जाता है जो लोअर मिडिल क्लास या बिलो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वही प्रिपरेशन करते हैं और कोई नहीं करते। हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। हमारा फैमिली को यदि अपस्केल करना है तो उसके लिए हमें सेटल होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, कुछ नहीं। अभी जिस एज में हम ना ही यहाँ से क्रिकेटर बनेंगे, ना ही डांसर बनेंगे, ना ही स्विमर बनेंगे, कुछ नहीं बनना, ना ही सिंगर बनेंगे। बचता एक ही चीज़, भैया पढ़ाई करके आगे बढ़ो। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है नहीं कि उस बिजनेस को संभालेंगे, काम सब चल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमें करने की जरूरत है तैयारी। तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जो मतलब दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक,
थोड़ा सा सावधान हो जाना। दूसरे रास्ते का मतलब क्या है, इस एज में आपको प्यार मोहब्बत वाला चीज होगा, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूरी बना के रखना कुछ दिन के लिए। यदि दूरी नहीं बनाएंगे तो दिक्कत क्या होगा, आज आप जिसके साथ अपना खुशी देख रहे हो, कल आपके सामने उनका हाथ कोई और पकड़ रहा होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाना गाना पड़ेगा, मुबारक हो तुमको तुम्हारी शादी, और कुछ नहीं कर सकते वहां पर। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है दोस्त, कि अभी वो खुशियां एंजॉय ना करें, उसको समेट कर रखें। एक मोमेंट आएगा जब आप एंजॉय करेंगे। आपके एरिया का जो सबसे टॉप रेस्टोरेंट या सबसे टॉप होटल होगा ना, वहां पर जाके आप अपना फर्स्ट डेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, नहीं तो अभी चोरी छिपे कहीं पे, ब्रिज पे, कहीं पे, पार्क में, कहीं इधर उधर मिलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होता। ग्रेसफुली यदि मीटिंग रखना है तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। एक पेड़ भी होता है ना, उसमें जब फ्रूट लगता है पहला 2-3 साल फार्मर जो होता है उसको तोड़ देता है, फ्रूट लगने नहीं देता है। क्यों? उससे जो ट्री रहेगा उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो जब सही टाइम पे आने पे ही उसमें फ्रूट लगने के लिए फार्मर छोड़ता है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज है, हमारे पास फ्रूट लगना शुरू हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभी फ्रूट लगना है। अभी कुछ दिन हमें अपना करियर को बनाना है। करियर बनाएंगे, आपके पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल होगा। आज आप जिसका सिर्फ फोटो देख के काम चलाते, हो सकता है कल उधर से खुद मैसेज करे वो। थोड़ा सा टाइम देने की खुद को जरूरत है। क्लियर? समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? चलो, तो अब इसमें हमारा क्या रोल होगा? आपको कोचिंग का रियलिटी भी बताया, सारा डिटेल्स बता दिया, सिलेबस बता दिया। इसके साथ आप लोग बताइए, आपके मन में कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते, बताइए। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? यदि कुछ है तो हमें बोलिए, चुप नहीं रहना है। क्लास चलता है इंटरेक्शन से, वन वे कम्युनिकेशन से क्लास नहीं चलता, वो फिर मोटिवेशनल स्पीच हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? तो ये इस चीज में आपके साइड से भी इंटरेक्शन होना जरूरी है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ, कहली पूरा सिलेबस एटा ही अच्छी। देखो, एनटीपीसी पाई जोटा सिलेबस रहिबो, कौन लिखाई छी? एसएससी रो सिलेबस कौन अच्छी? एटा जो सिलेबस अच्छी, एथरे खाली इंग्लिश को साइड कर देव तो सिलेबस कौन हम? रेलवे रही। ठीक, किंतु जीएस रे स्टैंडर्ड टिके हाई थी और मैथ रीजनिंग रे स्टैंडर्ड टिके लो थी। बुझिएला? और किसी को कुछ डाउट? पजल्स, पजल्स माने कौन? जिते बड़े तमें छोट बड़े कौन किछि किछि पजल खेलुथिल ना नहीं? एरोबिक क्यूब कलर अरेंज करथिबो, हाँ ना नहीं? केबे एमती हेथिबो कि म्यूजिक चेयर कंपटीशन, हाँ ना नहीं? तापरे धरनियो एठी गोटे घरे गोटे डाइनिंग टेबल अच्छी, घरे 8टा लोक अछंती, किए कोठी बसिबे, ताकू अलग अलग फूड पसंद अच्छी, अलग अलग शर्टर कलर अच्छी, सेमती टाइप रे क्वेश्चन को पजल कहते। बुझेला? डाटा इंटरप्रिटेशन, जेमती कि तमे क्रिकेट देखुच, क्रिकेट रे गोटे रन रेट रे ग्राफ आसथिबो। एबे जेमती कि आईपीएल चलची, फर्स्ट ओवर रु 20 ओवर जाए अलग अलग ग्राफ थी रन रो, हाँ ना नहीं? कह या को कहती बार ग्राफ। ठीक,
केबे देखुथो डाटा एमती अछि, एते मेल अछंती एते फीमेल अछंती, ए टाइप रे डाटा अछि पाई चार्ट। केबे देखुथो एमती ग्राफ थी, रन रो ग्राफ अच्छी एटा एमती जाई कि एमती आछि, सब डीआई अच्छी बुझिएला। आउ किछि डाउट? हाँ हाँ आउ किछि क्वेरीज? बैंकिंग अवेयरनेस जेमती कि सीआरआर कौन हुए, एसएलआर कौन हुए, आरबीआई रे जो गवर्नर रहती ताकू के अपॉइंट करती, एसबीआई रे एबे चीफ किए अछंती, एबे हमें एठी इन्फ्लेशन जदि बढ़ी गला ताकि कंट्रोल केमती करिबा, टूल कौन कौन अच्छी, ए सब टाइप रे क्वेश्चन जो सबसेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अच्छी ताकू हमें बैंकिंग अवेयरनेस कहते। आउ किछि? और किसी कुछ क्वेरीज? नो क्वेरीज? ठीक, तो देख लो दोस्त, अब मैं बता दूं आपको कुछ बात आपके माइंड में। हमारा टीम है जो आपको हर चीज पढ़ाएगा, ठीक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक। और यहां पर मैं और मेरा फ्रेंड एलेक्स दोनों मिलकर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओनली 2 फैकल्टी कैन कंप्लीट होल सिलेबस। बट प्रॉब्लम क्या है, अपने पास बैच बहुत ज़्यादा है, तो स्पेसिफिक टाइम ही आपके बैच में दे पाएंगे। डाउट के लिए हर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए क्योंकि हर 2 घंटे में 2 घंटे का मिनिमम क्लास रहेगा, यहाँ पर मिनिमम क्लास 2 घंटे का होना है, तो हर बैच में टाइम का डिवीजन जो रहेगा इक्वल डिवीजन रहेगा। किसी दिन किसी बैच में ज़्यादा होगा, किसी बैच में कम होगा, ओवरऑल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फैकल्टी को सब्जेक्ट देंगे और कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे आपको। जैसे अरिथमेटिक आपको एलेक्स पढ़ाएगा, ठीक, अरिथमेटिक जो होगा एलेक्स पढ़ाएगा, एडवांस जो रहेगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। कंप्लीट रीजनिंग मैं ही पढ़ाता था, लेकिन उससे क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे जीएस भी पढ़ाना होता है। तो उस टाइम होगा क्या, कुछ जीएस में रीजनिंग में कुछ टॉपिक होगा, या फिर मैं अलग टीचर ही लाऊंगा, जैसे भी हो मैं आपको रीजनिंग को उधर से लूँगा। मैं कंप्लीट पूरा पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, अभी तक कंप्लीट मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ उससे बच्चे को थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग, या तो मैं पढ़ाऊँगा ऑन टाइम पढ़ाऊँगा, और नहीं तो फिर दूसरा टीचर दूंगा। क्लियर? उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको इंडियन पॉलिटी, ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन एलेक्स पढ़ाएगा। इन सब के लिए अलग टीचर रहेंगे, इनके लिए अलग टीचर होंगे। क्लियर? समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब आज के क्लास को शुरू करें थोड़ा। अभी तक हम लोग जो थे सारी बातों को समझ लिए, है ना। गेट